You are. Okay. So good morning to all of you. I, Dr. Balkrishan Negi, on behalf of the Economics Department, Atmaram Sanatan Dharma College, under the aegis of Internal Quality Assurance Cell, ARSD College, welcome you all in this one-day workshop on understanding WPI, data collection, construction, and its implication. First of all, my heartfelt gratitude to our principal sir because of his constant encouragement and guidance. We are doing such kind of seminars and webinars. I also thanks to webinar committee convener Vinita Tuli ma'am and her team, especially Ravinder Pantji for his technical assistance. Thank you, Ravinder Pantji. Thank you, all of you, for joining us. Now, I would like to invite our teacher in charge, Miss Richa Suri ma'am, to speak a few words of encouragement. I hope I'm audible. Yes, you are. Thank you. Thank you, Dr. Negi. Respected Principal Sir, Professor Gyantosh Kumar Jha, Dr. Vinita Tulli, our IQAC convener and webinar committee convener, seminar convener of our department, Dr. Negi, and above all, our esteemed guest for today, our esteemed speaker for today, Mr. Abu Huzaifa, my colleagues and dear students. A very good morning to all of you. I welcome you all on this day, on today's session on WPI and its construction and implications. Although Principal Sir could not join us today, but he has always been a pillar of support and inspiration for all of us. I thank Sir for his constant support and guidance. I welcome Mr. Abu Huzaifa, Deputy Director at Ministry of Commerce and Industry, Government of India, for having agreed to share his valuable time and expertise in the field with all of us. He's going to talk today about the nuances that goes behind the construction of the wholesale price index, the major components and subcomponents of WPI, the sub-indexes within the WPI and all of its implication. As you all are aware that these figures are released by the same ministry, the Ministry of Commerce and Industry, so I'm sure he's the best person to enlighten us in this field. I'm sure that today's session will be a fascinating and enriching experience for all of us. Without further ado, I would like to hand over to Dr. Negi for further proceedings of today's session. But before that, let me first take an opportunity to thank him, Dr. Negi, for his efforts in organizing these sessions for the benefit of all of us. So over to you, Dr. Negi. Thank you very much, Richa ma'am, for your kind words and your, introductory remark related to today's workshop. And we all know that, the inflation is the most important indicator of the health of the economy. We have the two kind of indicator, that is WPI and CPI. And this WPI is widely in the field of the policy making and the research. So today, I guess, we all are from economics background, if even we are not, but we know that what is the implication of this inflation. So the purpose of today's workshop is not going through all these basic, textbook, implications, but the purpose to understand the basics related to the practical knowledge of the WPI, how WPI is being constructed and presented by the source, the original source, that is the Ministry of Commerce and Industry. That the resource person today with us is having the high experience of constructing and monitoring all these WPI, how data has been collected. Because why it is important, I thought that we have to indulge in any kind of
research. Even in undergraduate, students are involved in research. So whenever we are doing the research, suppose the example of growth rate of the GDP and any output, agriculture output, we have to go through the real data or the real growth. And then if you have to calculate the real growth, then you need to go through the W. That is the index by the nominal value. So whenever you go through that data, you will face many technical problems. So how data has been constructed, how it's been segregated, how it's been indexed, and if you wanted to see the individual real value of individual items and how we can do that, these are some practical problems even I faced during my research. So I thought we should have a kind of workshop where we can have some basic practical knowledge related to the WPI, which is widely used in policy making and well. So I really thanks to the original source, Mr. Abu Huzaifa. He consent to be today's resource person because I know that parliamentary session is going on. He's so busy with all questions and making answers of questions and all that. So I really thanks to Mr. Abu Huzaifa. Before I hand over the mic, I would like to introduce Abu Huzaifa. Shri Abu Huzaifa is currently working as a Deputy Director in Office of the Economic Advisor, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. He was graduated from Allahabad University, Uttar Pradesh, and completed Master of Arts in Economics from Jamia Millia Islamia, Delhi. He has done Master of Philosophy in Economics from Jawaharlal Nehru University, Delhi. He got selected in Indian Economic Service in 2014 and joined as Assistant Director in Office of Economic Advisor in 2015. He got promoted as Deputy Director in 2018. Since then, he has working as a Deputy Director in the Office of Economic Advisor in Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is known as DIIP. So I really thanks to Shri Abu Huzaifa to giving consent to be the resource person of today's workshop. Thank you very much. My heartfelt thanks to you. And now the mic is over to you, Abu Huzaifa. Can I start now? Yes, you can. Yeah, very good morning to all of you. It is very good to be here, and I would like to express my sincere thanks, especially to the principal sir, Gyan Dosh sir from Atmaram College, and I also express my sincere gratitude to webinar committee convener Vinita Tulli madam and Miss Richa Rastogi and Dr. Negi. And it is always good to be with the academic discussion, and it because most of the time what we found that academic discussion is a very updated, and we also regularly interact with different academicians to understand the different policy perspective. And today actually we are going to discuss special discussion will be on wholesale price index, all India wholesale price index I will be discussing. And thank you for giving me this wonderful opportunity. I also express my thanks to all the members of the Atmaram College, and I hope today discussion on the workshop, it will be very wonderful, and I will try my best to clear all the doubts raised during the session. And basic purpose of the workshop, as Dr. Negi has already expressed, to understand the practical issues and practical methods of used in the price index in India actually. And sometime, and one more important thing I just want to express,
in textbook, we read different type of theories and different type of methods for computation of the index number and computation of other indices as well, other price indices as well. But what actually applied in India, that has to be understood from the practical point of view. And to address all the issues, I will run my slide, and let's hope we can understood and we can get all the points what I am trying to express. I hope my voice is clear, Dr. Negi. Yes, yes, it is. Yes. Yeah, let's start with the understanding of the wholesale price index, data, construction, and implication. Here we will discuss about something, some issues we will discuss about the basic, what is what is WPI and how it is actually constructed. You can, and sorry for interruption. You can put it in slide mode. Oh, yeah, just. That would be better. Yeah, is it visible now? It is not in, yeah, it is fine now. Yeah, it is fine now? Yeah. Now coming to the, these are the line of presentation. First, I will explain about the different price indices compiled in India in the current juncture, and the comparison of WPI and CPI combined, and some of the historical perspective. I will also explain about the price indices and some basic concept covering data collection and how does the WPI data is collected from different sources. Those things we will discuss during this 1 hour workshop. And the most important, the computation of the wholesale price index. I will try to compute item index, commodity index based on the WPI formula, and so that you can easily understand how it is computed. And one thing we should understand, the item index computed in WPI is also similar line. It is followed in CPI and other CPI industrial worker and CPI combined. And the last one is the implication of the WPI. For doing any work, we have certain implications, certain users of the particular task, whatever government of India is doing. We have a large number of stakeholders who are using WPI and CPI industrial worker. And that for CPI industrial worker, maybe some of my friends and some of my senior may be interested to know about the DA calculation. That DA calculation I will also try to explain in the last slide. So because I'm not part of the CPI industrial worker team, but I know about the DA calculation of the calculated based on the CPI industrial worker, that I will explain in one slide. But basic focus will be on WPI. Let's start with the WPI. Different price indices which is compiled in India, as you all know, because this first slide you may be aware about, some of the people may be aware about wholesale price index. As you all know, it is compiled by whole Ministry of Commerce and Industry, and it is primarily used as a GDP deflator. When as you all know, GDP is computed at initial level in a nominal terms. Nominal terms, it means P multiply Q. That will be the nominal kind of GDP, and then it is deflated at its real value, taking WPI as a deflator. Deflator formula, you are already aware about what is the deflator formula. That will also, I will try to demonstrate some example based on that. And second is the revision of the essential drugs. Like government of India monitors around 900 essential medicines prices on regular basis, and those medicine prices are controlled based on the WPI index. And whatever price increase shown by WPI, accordingly these essential price drugs are adjusted in the next year.
So that is that will also, I will explain in one slide how it is actually used. And the third important, these are the primary use I will try to explain. And the third important, that is the toll rate. Whatever toll rate we are paying to different NHA line, like highway, we are traveling different highway, we have to pay different rates of toll. Those toll rates are computed based on the WPI index. And that will also, I will try to practically try to explain how does it computed actually, and how WPI actually affect the increase or decrease in the toll rate in different highway. Yeah, now coming to the consumer price index combined, it is compiled by the Ministry of Statistics and Program Implementation. That is the first thing. And it is currently in India, it is the headline inflation and used in the monetary policy by the RBI. Before 2014, WPI was the headline inflation, but now we have shifted to CPI as a headline inflation. So these are the things. And the third important consumer price index, that is industrial worker. Industrial worker consumer price index, it is used in revision of the DA and minimum wage rate. Whatever we are paying to different contractual staff in different colleges, different ministries, different department, if you see the notification of the Government of India, those minimum wage, आप लोग ऐसा भी सुनते होंगे कि मिनिमम वेज रिवाइज हो गई इस पर्टिकुलर ईयर में, तो मिनिमम वेज जो रिवीजन होता है वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे होता है कि, और हर सिटी में और पर्टिकुलर हर स्टेट में, हर स्टेट अपना अपना मिनिमम वेज डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है, लेकिन वो ब्रॉडली सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को यूज करके ही मिनिमम वेज वो लोग डिफाइन करते हैं. जैसे दिल्ली की मिनिमम वेज हायर होगी कंपेयर टू यूपी मिनिमम वेज, तो वो कुछ फैक्टर एडिशनल ऐड किया जाता है हर स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिनिमम वेज वी ट्राई टू लाइक इट इज रिवाइज्ड. And the fourth important one, that is also compiled by Ministry of Labor and Employment, consumer price index, rural labor and agriculture labor. And currently this rural labor consumer price index is used as a revision of Manrega wage rate. Whatever wage rate we are paying currently to the Manrega workers, those wage rates are revised based on the growth rate in the consumer price index rural labor. Currently the base year of 86, 87, that is the base year. And these are the broad picture of the price index compiled in India. And we will also try to compare first two price index, CPI and CPI combined and WPI. I will try to compare in the next few slides. Yeah, I will explain let's see the comparison of the WPI and CPI. I will just quickly show the comparison of, because these things you may be already aware about what is the coverage of the WPI and what is the coverage of CPI followed by RBI. And if you see the WPI captures goods only, and the CPI combined captures goods and services both. WPI captures 697 commodities in total, and CPI captures 299 commodities in commodities and services in total. And if you will see the item distribution, like in case of WPI is bifurcated in 3 major groups, and CPI also bifurcated in 6 to 7 major groups. And if you see that WPI primary article is mainly agricultural items are taken under primary article, and fuel and power item and manufactured product. Manufactured product we are covering around 564 in the current base year 2011-12. And if you will see the CPI on the other hand, the coverage of CPI is 299 in total, and for the food and beverages product
it covers 127 items, and fuel and light, it covers 11 items, housing, it covers 4 items, clothing, footwear, 27 items. These are the coverage of items in percentage and in number. Bracket shows the numbers, and other is percentage of those items. And let's understand the weight comparison. What is the weight comparison of the WPI and CPI? If you will see the weight comparison, it is rounded to it is rounded figure. So maybe current primary article weight is 22.6 something. So it is rounded to 23. So these numbers are rounded to make it much more clear. Yeah, for manufactured product, WPI is having 64% weight, and primary article 23% weight, and fuel and power 13% weight. The basic difference between the fuel and power and between the WPI and CPI, if you will see the fuel and power and fuel light in CPI, weight is different. 7% in CPI, fuel and light, and WPI it is having 13% weight, just approximately double its weight. And food and beverages, you can see like 46% weight in CPI, and in WPI food is having around 23% weight, 23% weight. And if you will compare the weight composition between the WPI and CPI, that weight composition is also differ along with the composition of the items. So and sometimes you see, even in the current scenario also, you see there is a divergence between CPI, consumer price index, and wholesale price index. This divergence mainly occurs because of the difference in the weight composition and the item compositions. Because the WPI is more linked with the international scenario, and consumer prices are very much linked with the domestic factors. So those factors are actually behind the divergence of the WPI and CPI. And yeah, let's understand the WPI wholesale price index. Basic of the wholesale price index, as some of the people may be aware about the WPI history. WPI is the oldest index in India, and it was started in 1915 in the British government from the Kolkata region. But that time it was computed only for the Kolkata region. And but later on, All India Index published, first time it was published in 1942 at All India level with the base year of 1939. That was and this was the first price index launched used in India to measure the wholesale price movement. And later on, CPI, industrial worker and consumer and other price index came up with the need of the country. And also the base year also revised over the period of time. As you are all aware about the base year revision, every 5 to 6 years or 10 years, Government of India constitute a working group for the revision of the base year of the index number. And those, like current series of WPI, which base is 2011-12, it is based on the recommendation of the working group chaired by late Dr. Soumitra Chaudhary. So some people may be aware about the one working group was also set up to revise the 2011 to current series of WPI from 2011-12 to 2017-18. That work is still going on, and that working group has already submitted the report, and we are in the process of consolidating all the things in the new series of WPI. And now coming to the evolution, if you will see the evolution of WPI, initially it was only 23 items in WPI. That was for only for agricultural items were there, 23 items. If you will see, there was no weight applied in the first WPI computed based in 1942. तो उस टाइम क्या होता था कि कोई वेट हम अप्लाई नहीं करते थे किसी भी आइटम में. अभी सारे आइटम इंडेक्स के साथ एक वेट एसोसिएट रहता है.
तो अभी का आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है WPI में, और नंबर ऑफ प्राइस कोटेशन इज नथिंग बट इज अ सैंपल, कि उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कितने सैंपल लिए गए। तो जैसे 23 आइटम था तो 23 सैंपल भी लिया गया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज हुआ है, लेकिन सैंपल उससे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, उससे ज्यादा नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट, क्योंकि पहले किसी एक आइटम के किसी पर्टिकुलर एक ही वैरायटी अवेलेबल रहती थी। जैसे मान लीजिए व्हीट, पैडी या इस टाइप का कोई भी आइटम है, या कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम का, मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि एक रेडियो है। रेडियो पहले एक ही दो कंपनी बनाती थी इनिशियल स्टेज में, जो 20-30 साल पहले का टाइम पीरियड आप देखेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉनिक में डाइवर्सिफिकेशन मार्केट में आया, तो देयर आर वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल। सिमिलर लाइन आप मोबाइल फोन को कह सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ वो फिर कवरेज ऑफ प्राइस कोटेशन, कवरेज ऑफ सैंपल इंक्रीज किया जाता है। ये सारे इंडेक्स में होता है, सिर्फ WPI में नहीं। WPI में सैंपल कम है, लेकिन आप अगर CPI का सैंपल में सैंपल अगर देखेंगे तो CPI का सैंपल बहुत ज्यादा होता है। इट इज इन इवन इन लैख CPI का सैंपल जो कलेक्ट होता है 299 आइटम के लिए, वो उनका लैख में होता है सैंपल। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज ये जस्ट एवोल्यूशन। मैंने ये जस्ट मैं क्विकली आई विल शो द नंबर ऑफ कवरेज in WPI right now. We have already seen in earlier slide these are the total item covered in WPI, and these are the total sample taken in WPI, and these are the things we have already discussed. I will go further, I think. Let's understand the key concept of WPI. Key concept of WPI, there are 2-3 things like I will try to explain regarding WPI. What is the price taken in WPI, and I will also try to compare the price taken in the CPI. Like in WPI, we are taking the price, ex factory price at first stage of the transaction. First stage of the transaction means it is a factory gate price for the manufacturing units. It is the mandi price for the agricultural items, and for other mineral item it is ex mine price. कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल स्टेज का ट्रांजैक्शन होता है, जो प्राइस एक प्रोड्यूसर चार्ज करता है होलसेलर को, वही प्राइस WPI में ली जाती है, और उसको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस, जिसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं होता है, ना ही उसमें टैक्सेस होता है। टैक्स कंपोनेंट हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें। इसीलिए ये कहा जाता है WPI इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल पॉलिसी डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो उसके एक्सपेंडिचर अगर आप इंक्रीज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनडायरेक्टली इट में इम्पैक्ट द प्राइसेस, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी कोई नहीं है। जैसे 2004-05 का जो बेस ईयर था WPI का, जो 2017 है, वहां तक हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया हुआ था यहाँ पे। लेकिन 2017 के बाद से WPI से इनडायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट को हटा दिया गया है, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इनकम। और यही चीज इंटरनेशनली भी यही सेम चीज फॉलो किया जाता है। तो फॉलोइंग द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस दिस वाज डन, और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये चेंजेस लास्ट बेस ईयर रिवीजन में किया गया था। तो ये जैसे ये प्राइस हो गई आपको, ये प्राइस कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एग्रीकल्चरल आइटम्स के लिए जो प्राइसेस हमारी कलेक्ट होती हैं, वी कलेक्ट मंडी प्राइसेस और मॉडल प्राइस। मॉडल प्राइस वो प्राइस होती है जो मॉर्निंग में जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा सेलिंग होती है, वो उसको मॉडल प्राइस बोला जाता है। तो इन जनरल हम लोग मंडी प्राइस बोलते हैं सबको बताने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस हम, जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रांजैक्शन एक वीट की प्राइस हम ले रहे हैं, सपोज वी आर कलेक्टिंग अ वीट प्राइस फ्रॉम अ पर्टिकुलर मंडी, आजादपुर मंडी। तो आजादपुर मंडी में एक वीट कोई पर्टिकुलर वैरायटी जो सिलेक्टेड है WPI में, उसकी प्राइस मान लीजिए कि 2000 चलती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रेट पे किया है उस मंडी में। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे होगा अर्ली मॉर्निंग जब मंडी खुलती है, तो उस ट्रांजैक्शन प्राइस को हम लोग एवरेज लेते हैं, एवरेज करके वो मंथ प्राइस बनाया जाता है उसको। तो उस मंडी प्राइस को लेके एग्रीकल्चर आइटम्स के इंडेक्स बनाए जाते हैं पूरे।
और उसी तरह से जो बाकी क्रूड पेट्रोलियम और मिनरल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे आइटम जो फ्यूल एंड पावर के जो आइटम होते हैं, ये एक्स माइन प्राइस होती है। एक्स माइन प्राइस जो माइन से जो भी निकलते वक्त विदाउट एडिंग एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, विदाउट एडिंग एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई कॉस्ट वहां पे एडिशनल ऐड ना हो, जो भी बेसिक प्राइस, कहने का मतलब वहां भी कॉन्सेप्ट कि जो बेसिक वैल्यू है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, जो बेसिक प्राइस आती है बनके वही प्राइस हम लोग लेते हैं वो, लेकिन डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफिनेशन आइडेंटिफाई किया हुआ है अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने, तो उसको फॉलो किया जाता है। अब दूसरी चीज देखिए है कि एक वेट कंप्यूटेशन जो होता है, और सीपीआई का एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं 1 मिनट में, कि सीपीआई में जो प्राइसेस कंप्यूट होती हैं, प्राइसेस जो कलेक्ट की जाती हैं, वो रिटेल प्राइसेस कलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम द शॉप्स। जो भी शॉप होती है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, वो लोग के पास एक सैंपल होता है शॉप्स का, ऑलरेडी सिलेक्टेड शॉप्स होती हैं, उसी शॉप से वो लोग रेगुलर डेटा कलेक्ट करते हैं मंथली बेसिस पे। और डब्ल्यूपीआई में एक तरफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6000 फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, जो डब्ल्यूपीआई में अभी इंक्लूडेड हैं, जिनसे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं सारी फैक्ट्रीज, उसके उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। और सीपीआई में रिटेल से, शॉप से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो और अब आते हैं इसमें वेट कैसे कंप्यूट होता है किसी भी इंडेक्स का या डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का। As far as WPI is concerned, weight of the item or group is computed based on the gross value of output plus import minus export। कहने का मतलब है कि जो चीज weight is derived based on the domestic transaction of the economy, तो इसमें assumption एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड करने की assumption ये है कि ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, ये it is going outside of the country, that's why we are deducting export from the total value of output। तो जो नेट ट्रेडेड वैल्यू होगी उसी वैल्यू के बेस पे जिसका भी जितना रिलेटिव आउटपुट आएगा, जिस आइटम का जितना भी रिलेटिव आउटपुट आएगा, उस आइटम को उतना वेट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप में या ओवरऑल आइटम बास्केट में। तो आप देखेंगे कि फूड कंपोनेंट का वेट ज्यादा है डब्ल्यूपीआई में, और केमिकल और ये सब के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इंपोर्ट इनके बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली केमिकल के इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। तो उस वजह से भी केमिकल और बेसिक मेटल्स ये सब के वेट ज्यादा आपको मिलेंगे वहां पे, बिकॉज कि यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा होता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट इनकी ज्यादा आती है, इस वजह से उनको ज्यादा वेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डब्ल्यूपीआई के की कॉन्सेप्ट है जिसपे डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। और डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें 2 सोर्सेज हैं ब्रॉडली, देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज, वन इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द सेकंड इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वी आर कलेक्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ द NSSO ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, and it has 480 regional offices across India and 165 sub-regional offices across India under the 48 regional offices. So with the help of national sample survey और इनके जो भी स्टाफ की मदद से हम लोग WPI के डेटा फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भी ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये मंथली बेसिस पे ये विजिट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और उनको विजिट करके उनसे डेटा एक्स फैक्ट्री प्राइस या बेसिक प्राइस जो भी अवेलेबल रहता है उनका, वो प्राइस वो कलेक्ट करते हैं और उसको फिर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि डेटा कलेक्शन का अभी जो मैकेनिज्म है 100% डिजिटलाइज हो गया है। देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन इन द डेटा सबमिशन एंड डेटा वैलिडेशन। इन द केस आई विल गिव यू द एग्जांपल कि जैसे डेटा डायरेक्ट फैक्ट्री के एक अपने यूनिक पासवर्ड और यूजर आईडी दिए गए हैं सबको, वो यूजर आईडी पासवर्ड किसी को पता नहीं होता, सिर्फ फैक्ट्री जानती है। और दूसरी चीज है कि एक यूजर आईडी NSS स्टाफ के पास भी होता है, वहां से जो डेटा इंटर होता है
डायरेक्ट हमारे सर्वर में आता है पोर्टल में। पोर्टल ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड कंप्लीट पोर्टल बनाया गया है इसके लिए, और वो डेटा वो सबमिट जैसे ही करते हैं और हमारे पास फिर वो शो करने लगता है कि इस फैक्ट्री ने इस डेटा को सबमिट किया है, और उस डेटा को फिर हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट इन द सेंस 2-3 तरीका उसका होता है कि हम उस पर्टिकुलर आइटम की प्रीवियस 4-6-7 मंथ की प्राइसेस चेक करते हैं कि क्या ये प्राइसेस जेन्युइन प्राइस डली है कि नहीं डली है। तो अगर वो जेन्युइन प्राइस डली है तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग अक्रॉस मार्केट उस पर्टिकुलर वैरायटी की प्राइस को चेक करते हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म वैलिडेशन का होता है कि अगर सपोज आजादपुर मंडी ने व्हीट की प्राइस रिपोर्ट किया है 20,000, अगर उसने 20% इंक्रीज दिखाया है कि 20% इंक्रीज हो रहा है व्हीट की प्राइस में, तो हम लोग अदर मंडी से भी चेक करेंगे कि अदर मंडी में क्या सिचुएशन है। तो वो चेक करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि बाकी मंडी में भी सिमिलर लाइन में प्राइसेस बढ़ रही हैं या कुछ स्पेसिफिक रीजन है आजादपुर मंडी या पर्टिकुलर फैक्ट्री में कि ये हाई प्राइस रिपोर्ट किया है। तो फिर उसको हम दोबारा कॉल अप करके बात करके वो सारी चीजें समझते हैं। समटाइम शॉर्टेज ऑफ मटेरियल के चलते प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में या पर्टिकुलर यूनिट में, तो वो सारी चीजें हम लोग रेगुलर एग्जामिन करते हैं। तो अभी जैसे ये हमारा डेटा कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर होता है, और डेटा सोर्सेज में जैसा मैंने बताया प्राइमरी आर्टिकल में ये मेजर सोर्सेज हैं जो प्राइमरी आर्टिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेक्सटाइल कमिश्नर, डेयरी मिल के लिए नेशनल डेयरी बोर्ड से डेटा हम लोग लेते हैं, और मिनरल्स के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये सोर्सेज हैं डेटा के। मेजर सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है जो मंडी से प्राइस कलेक्ट करके हमको देता है, और फ्यूल एंड पावर के लिए ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं मेन जो हमको अलग अलग जगहों से डेटा हमको प्रोवाइड करती हैं। और मैन्युफैक्चर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें हम लोग का डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, वो सारी जगहों से डेटा हमारे पास आता है। ये जस्ट डेटा सोर्स था, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अभी हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। आई थिंक दिस विल बी द much more interesting for all of you. I think for all the students especially, let's understand the method of the WPI. देखिए किसी भी इंडेक्स को कंप्यूट करने के दो लेवल होते हैं। एक होता है कि फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट द आइटम लेवल इंडेक्स। लाइक अगर एक मोबाइल सेट है, मोबाइल का हमको आइटम का एक इंडेक्स बनाना है, तो इसके डिफरेंट सैंपल्स लेने के बाद एक आइटम इंडेक्स जनरेट होता है। तो जो आइटम इंडेक्स का फॉर्मूला है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इंडिया में वो है जीवन सिंटेक्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि इट यूज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव ऑफ प्राइस चेंज। ये मैं डिटेल में अभी आपको बता दूंगा एकदम ऐसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं। और सेकेंड स्टेज पे जो हम लोग एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन पे जैसे फर्स्ट आइटम लेवल इंडेक्स पे वेट का कोई रोल नहीं होता है, उसमें सारे सैंपल सेम वेट के साथ आते हैं और उन्हीं को एवरेज करके हम लोग प्राइस रिलेटिव करते हैं। तो आइटम लेवल इंडेक्स पे देयर इज नो वेट, लेकिन जैसे ही हम सेकेंड स्टेज सब ग्रुप या अपर ग्रुप के साइड में जाते हैं, मेजर ग्रुप पे जाते हैं, वहां पे वेट का यूज होता है। वेट उसके लिए लास्प्रे फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये आइटम इंडेक्स मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द आइटम और टोटल वेट ऑफ द पर्टिकुलर सब ग्रुप या मेजर ग्रुप जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मेजर रहेगा। अब आते हैं इसका कंप्यूटेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। इसमें देखिए आई हैव मेड वन एग्जांपल लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल टू मेक इट मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड। Let's suppose we have to compute a mustard oil index in WPI or any other index. मस्टर्ड ऑयल इंडेक्स में अगर मान लीजिए हमारे पास सारे इंडेक्स में कुछ सैंपल होते हैं, तो सैंपल हमारे जो बनते हैं उनके सैंपल के नाम पे ब्रांड के बेसिस पे भी सैंपल बनाया जा सकता है, स्पेसिफिकेशन के भी बेसिस पे सैंपल बनाया जा सकता है, और डिफरेंट अदर भी पैरामीटर होते हैं सैंपल बनाने के। जैसे मस्टर्ड ऑयल को सैंपल हम लोग जो सैंपल करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जैसे फॉर्चून है, कच्ची घानी है, धारा है, पतंजलि है, डाबर है। ये मैंने एग्जांपल जस्ट लिया है। आप अभी 2011-12 की सीरीज पे मैं आपको बता देता हूं कि मस्टर्ड ऑयल का इंडेक्स एक्चुअल में कंप्यूट कैसे होगा। मस्टर्ड ऑयल का सपोज हमारे पास जो डेटा आता है, ये 5 कंपनी हमारे पास सिलेक्ट है और इन्होंने जो पर लीटर प्राइस रिपोर्ट किया है
वो रिपोर्ट किया है। जैसे फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया है अप्रैल 2011 में 60 रुपया, फिर 65, फिर 67, ये करके 70 तक गया। ये डॉट डॉट का मतलब बाकी रिमेनिंग मंथ है इन बिटवीन। तो और बाकी ये बाकी अदर वैरायटी है, मतलब कच्ची घानी, धारा, पतंजलि, ये इस टाइप से करके बाकी प्राइसेस भी हमारे पास आ जाती है। तो ये आप देखिए कॉलम, 5 कॉलम हमारे पास है टोटल। हमारे पास 5 कॉलम है, 5 कॉलम में डिफरेंट प्राइसेज आई हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इंडेक्स में बेस्ट प्राइस कंप्यूट करना। तो बेस्ट प्राइस कंप्यूट करने के लिए हमको अप्रैल 2011, क्योंकि यही बेस ईयर है, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो ये बेस्ट प्राइस का ज्योमेट्रिक मीन मैंने सिर्फ इसी के बेस पे दिया है एग्जांपल के तौर पे। तो ये एक्चुअल नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो इस वजह से वो पता चलेगा। जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये आपका बेस्ट प्राइस आ गया ज्योमेट्रिक मीन। हम जब निकालेंगे इस पूरे नंबर्स का तो ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंगली सारे सैंपल का आप कच्ची घानी का भी बेस्ट प्राइस बना लीजिए। जब ये बेस्ट प्राइस सेटल हो जाए, ये बेस्ट प्राइस बनाने के बाद यही बेस्ट प्राइस उस सीरीज के पूरे लाइफ टाइम में चलेगा। बेस्ट प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज इन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडेक्स नंबर। बेस्ट प्राइस एक बार जो बन जाता है उसी बेस पे हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो जैसे इंडेक्स, तो अब जैसे ये आ गई हमारी बेस्ट प्राइस। अब इसमें देखिए दूसरी चीज है कि अब ये बेस्ट प्राइस बनाने के बाद और बेस ईयर का इंडेक्स 100 माना जाता है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 रहेगा। ये थियरी में ही है कि इसको 100 अज्यूम कर लिया जाता है। तो ये बेस्ट प्राइस 63 है। अब अज्यूम करिए कि अप्रैल 12 से उसने क्या प्राइस दिया उस पर्टिकुलर वैरायटी ने। जैसे फॉर्च्यून ने 72 रुपीज तक प्राइस कर दिया, 74, 75 और 75, ठीक है, इस टाइप की प्राइस फॉर्च्यून से आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि बेस्ट प्राइस से इसको डिवाइड कर देंगे, ये पूरे को। तो इस प्राइस को पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो इसको 7, जैसे इसमें आप करेंगे 72 डिवाइड बाई 63, ये आएगी आपकी वैल्यू 1.13। और इसके बेसिस पे बाकी भी रिलेटिव प्राइसेस हम लोग कंप्यूट करते हैं 1.17। जैसे सैंपल के तौर पे आप इसको समझ लीजिए कि ये जो 1.17 आया है, ये 75 डिवाइड बाई ये 63.82, ये डाबर का जो भी प्राइस था 93 करके जो आ रहा है यहाँ पे 70 का, इसका बना के तो इसका रिलेटिव प्राइस हो जाएगा आपका। तो रिलेटिव प्राइस को आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है। फिर ये जो आपका अब क्या होगा कि हर इन एवरी मंथ वी गेट द रिलेटिव प्राइसेस। In every month we get the relative prices based on this best price. We simply divide all the prices with the best price and we get the relative price, and we take the geometric mean of the relative prices. Then mustard oil index हमारा compute होगा इसके बाद। और तो मस्टर्ड ऑयल इंडेक्स आप देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिक मीन जो हमने लिया है 109.7, ये मस्टर्ड ऑयल का इंडेक्स बनेगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई 100, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस रिलेटिव बिकम द मस्टर्ड ऑयल इंडेक्स फॉर अप्रैल 2012। और इसी तरह से ये इंडेक्स हर महीने कंप्यूट होता है, हर आइटम के लिए, हर पर्टिकुलर। तो ये एक सैंपल के तौर पे मस्टर्ड ऑयल इंडेक्स का मैंने कंप्यूट करके दिखा दिया है आपको कि एग्जैक्ट कंप्यूटेशन कैसे होता है, और फिर इसमें 113.67 इसमें आएगा, बाकी इसमें भी उसी तरह आएगा। अब जैसे इसमें आप देख लीजिए कि एग्रीगेशन कैसे होता है। एग्रीगेशन मान लीजिए कि अगर वेट 4% है टोटल, मान लीजिए कि सब ग्रुप, ऑयल का सब ग्रुप होगा एडिबल ऑयल सब ग्रुप के लेवल पे। तो अब एडिबल ऑयल में कौन से ऑयल आ सकते हैं? मस्टर्ड आ सकता है, पाम ऑयल आ सकता है, कोपरा ऑयल आ सकता है, वनस्पति आ सकता है। तो ये सारी चीजें आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वेट का रोल होता है। वेट को अब ये जो इंडेक्स निकलेगा ये आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा।
वेटेड अरिथमेटिक मीन मतलब होगा कि टू को इसमें मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग रो को इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल वेट, तो वो हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। और इस वाले कोटेशन पे हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया है। आइटम लेवल इंडेक्स पे ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये अपर लेवल पे जब एग्रीगेशन हम करते हैं तो यहाँ वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाता है। बस यही एक बेसिक यहाँ पे डिफरेंस है, और इसी के बेस पे हम लोग फर्दर एग्रीगेशन करते हैं अपर लेवल पे। जैसे आप इसके बाद मान लीजिए कि प्राइमरी आर्टिकल में, जैसे मैं ये एडिबल ऑयल ग्रुप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिक, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइमरी वाला कैसे बनेगा। प्राइमरी वाला भी सिमिलर लाइन पे होगा कि सपोज प्राइमरी का इंडेक्स 1110 है और 1111 और मैन्युफैक्चर्ड का 114, उसके बेसिस पे व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली टेक द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 6 नंबर, और इसके बेसिस पे द इंडेक्स ऑल इंडिया WPI इंडेक्स विल बी कंप्यूटेड। ये WPI का इंडेक्स होगा ऑल इंडिया लेवल का, और इसके इसमें आई थिंक इसको एक्सेल में डेमोस्ट्रेट करने की जरूरत है कि सारे लोग को आइडिया लग रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसमें कंप्यूटेशन कैसे चल रहा है। डॉक्टर नेगी? It is fine. I think people are getting. If they are not, then they can write in the chat box. So these are the like basic step of the index computation, how it is computed at a item level, and how it is computed at a subgroup level, and then at a all India level, how it is computed with different using the Lasprey method and Jevons method. One question I want to ask is that how you are deciding these weights? Primary article is 22.6 to 13. Yeah, weight is actually, it is in terms of net traded value that I have shown in the earlier slide. This weight is decided at the time of base year revision. So this weight will be fixed over the lifetime of the series. और इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसका जितना भी शेयर रहेगा, राइट, दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट में जितना शेयर है उसके बेस, राइट, एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। तो जो भी नेट हमारा आएगा वही इसका ये शेयर है, उसमें उसका शेयर है एक्चुअली। You have shown in the first slide or second. हाँ, तो वो मैंने उससे पहले दिखाया है उसमें। तो आई विल गो फर्दर। आई थिंक नाउ कमिंग टू द यूज ऑफ WPI. Use of WPI, I will just try to give one slide. I have skipped somewhere. Implication of the WPI, like you in use of WPI, as you all know, WPI is used as a deflator in GDP and index of industrial production to arrive at their real values. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जीडीपी और आईआईपी को रियल वैल्यू पे कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू हम लोग WPI का यूज करते हैं। WPI के साथ दूसरे भी इंडेक्स यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सेक्टर। जहां जहां डेटा WPI में अवेलेबल है वहां पे WPI को एज ए डिफ्लेटर जीडीपी में यूज किया जाता है। और दूसरा है कि WPI का जो एक इम्पॉर्टेंट यूज है अभी के टाइम में, वो है कि प्राइस एक्सेगुलेशन क्लॉज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रोड कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कोई सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें प्राइस एक्सेगुलेशन क्लॉज में उसका यूज होता है कि उसके मटेरियल की कॉस्ट और मशीनरी कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी चीजें रहेंगी उसकी, उसमें किस दर से उसको बढ़ाया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जो रेट होगा वो WPI के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है कि अगर WPI 2% इंक्रीज करता है आने वाले एक डेढ़ साल में, तो उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट ऑफ जो भी कॉस्ट रहता है वो अपडेट किया जाता है उसको। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैंने बता दिया है कि एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस रिवाइज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, एंड टोल रेट का रिवीजन होता है। टैरिफ सेटिंग ऑफ द मेजर पोर्ट्स के जो टैरिफ होते हैं डिफरेंट शिप्स को जो पे करना होता है वो उसको कंप्यूट करने के लिए यूज होता है। और RBI भी इसको एज ए इनपुट यूज करता है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द फूड इंडेक्स। तो इसमें अब आते हैं कि इसके प्रैक्टिकल यूज क्या है और फर्दर। हाँ,
मैं आता हूँ, इसको जस्ट मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। ये एज इट इज जो किया जाता है उस तरीके से नहीं है। जैसे नॉमिनल को मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया है कि नॉमिनल इज नथिंग बट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। नॉमिनल जीडीपी में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट इंडिया में किया जाता है, कुछ काफी चीजें उसमें चीजें की जाती हैं। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि एक चेयर का एग्जांपल लिया है कि ऑफिस चेयर या कोई भी चेयर है जिसकी प्राइस 200 है और क्वांटिटी 20 है, और नॉमिनल जीडीपी अगर उसकी आप कंप्यूट करेंगे तो एक तरीके से हमारी 4000 आएगी, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसमें इंडेक्स नंबर का क्या रोल होता है, रियल पे कैसे पहुंचते हैं? तो रियल पे वो जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है, सेम लाइन पे इसका भी फॉर्मूला बनेगा। जीडीपी डिफ्लेटर की जगह आप डब्ल्यूपीआई इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे तो वो फॉर्मूला इसमें रिप्लेस हो जाता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 2011-12 में ये सिचुएशन थी, 4000 नॉमिनल जीडीपी थी, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011-12 है तो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स भी 100 ही रहेगा। तो 100 रहेगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जो रहेगा इसमें डिवाइड जो हम करेंगे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4000 ही रहेगी रियल जीडीपी इन द बेस ईयर। तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो इट मीन्स कि कोई रियल और नॉमिनल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा। ये जस्ट मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देता हूँ। इसमें आते हैं दूसरी सिचुएशन पे कि अगर मान लीजिए कि प्राइस इंक्रीज करती है, 200 से 300 जाती है प्राइस, और क्वांटिटी हम फिक्स रखते हैं। क्वांटिटी फिक्स रखते हैं तो ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी कितनी बढ़ी हमारी? 6000 आ गई। 6000 और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स मान लीजिए 1920 में, 1920 की ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि 1920 में ये सिचुएशन बन के आती है और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स 150 आता है। तो आपका देखिए ये एडजस्ट होके आपका 4000 ही हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो प्राइस इंक्रीज आया है ये इसमें रियल में एडजस्ट हो गया। तो आपका रियल कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज द प्राइस हैज आल्सो इंक्रीज, द प्राइस हैज इंक्रीज मोर देन 50%, और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स भी 50% इंक्रीज किया है, देख हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम ये देख सकते हैं कि ये डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का जो इम्पैक्ट आप देखेंगे रियल बनाने के लिए, अगर प्राइस सेम लाइन पे इंक्रीज करती है तो कोई रियल जीडीपी, और इसमें देखिए बहुत पिछले 2011-12 से 1920 में रियल में कोई चेंज नहीं आया, जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्रीज किया है। जैसे 4000 से 2000 जो बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज, नॉट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों सिचुएशन देख लीजिए कि ये प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे देखिए रियल भी इंक्रीज कर गया है, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा ये नॉमिनल। रियल जीडीपी जो हमेशा होती है, रियल जीडीपी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लोअर देन द नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन हायर साइड ही रहती है। तो उस वजह से रियल जीडीपी डाउन साइड एडजस्ट होता है। तो ये जस्ट मैंने थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है थोड़ा सा कि डब्ल्यूपीआई का रोल यहाँ पे कैसे होता है, और डिटेल में आप जाएंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा समझने में कि एग्जैक्टली सेक्टर वाइज कैसे कैसे एडजस्टमेंट होता है। लेकिन जो बेसिक एडजस्टमेंट होता है प्राइस का वो रियल पे ये यही रहता है, डब्ल्यूपीआई से सिंपली उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो वो एडजस्ट कर दिया जाता है उसके बेसिस पे। अब आते हैं टोल रेट का। टोल रेट का मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता दें, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाली चीजें ऑलरेडी आप सारे लोग ने देख रखा होगा और ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑल द थियरीज एंड एवरीथिंग। आई विल जस्ट एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द डब्ल्यूपीआई। कि जैसे टोल रेट अगर किसी भी जगह का कंप्यूट करना होता है तो उसमें एक बेस रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द व्हीकल्स। जैसे आप देखेंगे बेस रेट ये 2007 का बेस रेट फिक्स किया गया है कार और जीप और वैन और मिनी बस, ट्रक और कमर्शियल व्हीकल, ये सब अगर किसी हाईवे को क्रॉस करती हैं जो वैसे वाले हाईवे जहां टोल लगता है तो उनका बेस रेट क्या होगा? ये बेस रेट होगा इनका 0.65। कार और जीप के लिए, मिनी बस के लिए थोड़ा हायर साइड है, ट्रक के लिए ज्यादा है। तो ट्रक के लिए ज्यादा है इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि जो बेस रेट है उसको
Mr. Negi. Yes, yes. Yeah, can we ask for, can we collect some question? If you can ask someone, I will just get one call and get you back within a minute. Yes. Yeah, you can. If anybody want to ask meanwhile any question, you can paste your question in the chat box. Yeah. Yeah. Now coming to the टोल रेट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टोल रेट कैसे एक्चुअल में कंप्यूट होता है। कि एक बेस रेट जो होता है उनका ऑलरेडी डिफाइंड होता है किसी भी पर्टिकुलर वाहन के लिए, या आप उसको, और उस पे कुछ परसेंटेज इंक्रीज एनुअली वो फिक्स होता है। जैसे बेस रेट पे 3% का एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर रखा है, और आप जिस साल का, जितने साल का आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं अगर टोल बेस रेट से, जैसे 2007 का आज की डेट में बेस रेट हमारे पास है और हमको 2019-20 में हमको टोल रेट फिक्स करना है, तो वो इसका फॉर्मूला बनाया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर, मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग आपका 13 साल बनेगा, तो 13 से इसमें नंबर ऑफ ईयर में मल्टीप्लाई सिंपली हम कर देंगे, और यहीं पे WPI इंक्रीज जो 2007 से 2019-20 तक जो WPI का इंक्रीज हुआ है उसका 40% यहाँ पे लेते हैं इंक्रीज में टोल रेट। अगर WPI जिस भी रेट से इंक्रीज करेगा वहां पे, उस रेट से हम उसको एडजस्ट करेंगे और टोल रेट को कंप्यूट किया जाता है उसके बेसिस पे। तो मान लीजिए कि ये जो रिवाइज बेस रेट आ रहा है यहाँ नीचे की तरफ, आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, चेन्नई हाईवे पे जो बनाया गया है टोल, तो उसके उस पे ये किया गया है कंप्यूटेशन। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक रिवाइज बेस रेट कंप्यूट होता है WPI के बेस पे, और फिर उस रिवाइज बेस रेट को हम सिंपली किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना भी किलोमीटर रहेगा उस हाईवे का, मतलब मिनिमम 40 किलोमीटर अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई टोल नाका आप क्रॉस करते हैं तो मिनिमम 40 किलोमीटर ये गाड़ी आगे जाने वाली है, और बीच में अगर आपने किसी और बाईपास से ले लिया तो उसका अलग रेट डिफरेंट होता है, लेकिन मिनिमम 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उनका रेट होता है 48 रुपीज। 48 रुपीज उस पर्टिकुलर हाईवे पे टोल नाका को आप क्रॉस करेंगे तो 48 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ कार, जीप और उसके लिए कैलकुलेशन के लिए। और मिनी बस के लिए ज्यादा रहेगा, ट्रक के लिए इसी तरह ये चेंज हो जाएगा फिगर। जैसे इस नंबर को मैंने 119 को सिर्फ कार जीप से लिया है, यहाँ रिवाइज बेस जो है इसको 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके, और इसी तरह आप देखेंगे ये नंबर कमर्शियल व्हीकल के केस में ज्यादा आएगा ऑटोमेटिक। 40 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200-300 रुपए आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ किलोमीटर और इंक्रीज इन WPI प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टोल रेट कंप्यूटेशन। और डिटेल और भी जगहों पे वैसे मिल जाएगा आपको अगर देखना होगा तो, लेकिन इससे बेसिक चीज जस्ट आपको समझने के लिए कि WPI का यूज कितना होता है कहाँ पे। हाँ, अब यूज ऑफ WPI इन CPWD कॉन्ट्रैक्ट, जैसे CPWD के जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं अलग अलग जगहों पे, और रोड कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं हाईवे या उस टाइप के, उसमें भी फॉर्मूले यूज होते हैं। मैं CPWD वाला फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला ये लोग वेरिएशन इन मटेरियल कॉस्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो कुछ शर्त रखी जाती है। एक रहता है कि बेसिक, मान लीजिए कि एक सीमेंट की बोरी है, सीमेंट का एक पैकेट है बड़ा सा, जिसमें जिसके मटेरियल कॉस्ट पे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पहले बेसिक प्राइस उनको निकालना पड़ेगा कि सीमेंट की एक्चुअल बेसिक प्राइस कितनी है। तो मान लीजिए कि 5000 बेसिक प्राइस सीमेंट की होती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उस एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में अगर मान लीजिए कि सिर्फ 10 बोरी ऑफ सीमेंट यूज होनी है, ठीक है,
10 बोरी सीमेंट यूज होनी है, तो अब कहने का मतलब है कि अब इसको WPI के इंक्रीज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सिंपली देख सकते हैं WPI माइनस WPI 0 डिवाइड बाई WPI 0। WPI 0 वो है जो इनिशियल स्टेज पे जो WPI था जब आपने टेंडर किसी को दिया, और WPI 1 वो है जो एट द एंड ऑफ द टेंडर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड जब खत्म होने वाला है, या मान लीजिए कि आज की डेट में हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आज की डेट में सपोज वी आर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू एनीवन, इट इज गोइंग टू बी फॉर 2 ईयर, और बाद में पता चला कि ये 2 ईयर के बजाय 3 साल चला गया, तो फिर अकॉर्डिंगली ये अंडरस्टूड रहता है कि ये WPI के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। तो फिर उसी के टाइम पीरियड का WPI हम लेके उस टाइम पीरियड का 2 साल बाद का WPI जो होगा, तो 2 साल बाद का WPI विल ऑलवेज बी हायर देन टुडे WPI, क्योंकि प्राइस का जो ट्रेंड होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको सिंपली ये माइनस करते हैं, तो अब ये आपका जो वेरिएशन इन मटेरियल कॉस्ट आएगा WPI इंक्रीज के अकॉर्डिंग, अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखें तो 27,000 रुपीज उनको एडिशनल पे करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस कॉन्ट्रैक्ट को पे करना पड़ेगा। और सपोज अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, WPI बढ़ने के बजाय घट जाता है, तो उस केस में उनको रिबेट देना पड़ेगा वापिस। मान लीजिए कि अगर 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को दिया है, तो उसमें 27,000 ऐड हो जाएगा अगर WPI पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो वो रिवर्ट, उसी पैसे को हमको वापस उनसे लेना पड़ेगा जितना कैलकुलेशन बनेगा। तो कहने का मतलब है कि वेरिएशन इन मटेरियल कॉस्ट, इसी तरह बाकी सारी रेस्ट ऑफ द लाइक एन नंबर ऑफ आइटम्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड ऑन द WPI इंडेक्स, एंड ये जस्ट बेसिक चीज मैंने दिखाया है। इसी यही सिमिलर फॉर्मूला सेम लाइन पे मिलता जुलता ही फॉर्मूला NHAI का भी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो WPI को यूज करता है। जो बड़े हाईवे बनते हैं वहां पे भी WPI के चेंजेस जो होते हैं वो आपको दिखेंगे। तो ये जस्ट मैंने प्राइस एक्सक्लेमेशन क्लॉज में कैसे यूज होता है WPI वो मैंने आपको एलोबोरेट कर दिया है, जस्ट एक सिंपल वे में। कि वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट में मैं जानकारी के लिए बता दूं, सारे कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हैं अलग अलग, तो फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई वो लोग कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द ज्वाइंट कंसल्टेशन। जो भी उनका दोनों पार्टी की बात होती है, जो भी टेंडर जिसको जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से बात करेगा, दोनों में बात होके थोड़ा बहुत जो भी उनका कंसल्टेशन के बाद फाइनल होता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला उनका यही है। अब जैसे अब आते हैं इसमें जो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हम लोग जैसे सुनते हैं कि DA इंक्रीज हो गया या मिनिमम वेज इंक्रीज हो गई, तो वो कैसे इंक्रीज किया जाता है वो देखिए। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर दैट इज यूज्ड इन डियरनेस इन एडजस्टमेंट ऑफ द डियरनेस अलाउंस। और फिर इसको आप ये जैसे और बेस ईयर क्योंकि चेंज होता है WPI की जगह CPI का भी, तो उसके बेस पे जैसे अभी जो हमारा डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट होता है वो 2015 को एज अ बेस बना के हम लोग डियरनेस अलाउंस अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे अभी 2016-17 बेस ईयर है इंडस्ट्रियल वर्कर का, और 100 ये तो इसका इंडेक्स उस टाइम 100 था 2016 में, ये अज्यूम किया जाता है इसके सामने 100 इसीलिए लिखा जाता है। और बाकी उन्होंने क्या रिलीज किया है, ठीक है। लेकिन तो आप जैसे 2015 से हमको कंपेयर करना है, तो क्योंकि 2015 में जो CPI इंडेक्स वर्कर था, वो इंडस्ट्रियल वर्कर था, वो 2001 था बेस ईयर। तो इट मींस कि आपको 2016 को इस बेस ईयर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक लिंकिंग फैक्टर, आप लोगों को पता होगा, लिंकिंग फैक्टर एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे एक 3-4 डिफरेंट सीरीज को एक कॉमन बेस ईयर पे लाया जाता है। तो अगर इस सीरीज को आपको कॉमन बेस ईयर पे लाना है तो 2.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये सिंपली ये नंबर आ जाएंगे आपके पास। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस नंबर को आपको सिंपली लेना है, इसका एवरेज ले लेना है, इस नंबर का एवरेज ले लेना है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। मान लीजिए कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका DA या हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DA
जनवरी 2022 में क्या एक्सपेक्टेड है जो इफेक्टिव होने का चांस है। अभी तक जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर आ चुका है, लेकिन अभी ये प्रोविजनल होगा, तो प्रोविजनल में थोड़ा बहुत रिवीजन आएगा बाद में। 362 और 361 में ये प्रोविजनल रिवाइज हो जाएगा नंबर, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। तो उसके बेस पे कहने का मतलब है इसका आप एवरेज ले लीजिए सिंपल। आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ दिस पास्ट 12 मंथ का एवरेज हो गया, तो कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला रो ये है आपका, और एवरेज सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर रिकॉर्डेड इन 2015। 2015 में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्या रिकॉर्ड हुआ था, उस टाइम कितना रिकॉर्ड था, और फिर एवरेज ऑफ सीपीआई 2015 को उसी पे वो कर लीजिए। अब कहने का मतलब है कि ये जो आपका एवरेज आ रहा है, ये आ रहा है 351.3, और 2015 का जो इंडेक्स का जो एवरेज था 11-12 का, वो 261.4, और फिर उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और इसको डिवाइड बाई 261 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको मिलेगा 34.4%। ये एक्सपेक्टेड इंक्रीज है इन डीए फ्रॉम जनवरी टू 2022। जैसे अभी डीए जो हमारे पास हमको मिल रहा है, जो जुलाई से इफेक्टिव हुआ है, वो 31% इफेक्टिव हुआ है डीए में। तो 31%, तो 31% को आप 34 से 31 को माइनस कर दीजिए, जो रिमेनिंग बच रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज है 3.4%, ये एक्सपेक्टेड रेट है रिवीजन का। जो डीए रिवाइज अगर जनवरी से इफेक्टिव होता है, जनवरी 2020 से जो डीए इफेक्टिव हुआ, उसका ये रिवीजन यही बनेगा आपका 3.4%। तो ये हमारा डीए का कैलकुलेशन जो बेसिक, और इसी लाइन पे सिमिलर लाइन पे हम लोग मिनिमम वेज को भी रिवाइज करते हैं सिंपली कि ग्रोथ रेट कितनी हुई है, और उसके बेसिस पे जितना भी बनता है उनका एक डिफरेंट थोड़ा फॉर्मूला है। वो आई थिंक आप लोग अगर चेक करेंगे तो मिल जाएगा इजीली, लेकिन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों चीजों में। तो आई थिंक ये कंप्यूटेशन ऑफ डियरनेस अलाउंसेस था। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस फर्दर कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि लिंकिंग फैक्टर से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए करेंट टू डिफरेंट सीरीज। क्योंकि अभी जो डीए का कंप्यूटेशन हो रहा है 2015 पे, जो 2015 में जो सीपीआई रिकॉर्ड हुआ था 12 मंथ में, उसके बेसिस पे उसके कंपेयर में कितना ग्रोथ हुआ है एज ऑन द लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब है कि 2022 का जो डीए रिवाइज होगा आपका जनवरी 2022 का, वो आपके प्रीवियस 12 मंथ में जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर होगा माइनस 2015 का जो इंडस्ट्रियल वर्कर डब्ल्यूपीआई होगा, उसके ग्रोथ रेट के बेस पे बनेगा आपका। और वही जो डिफरेंस आएगा आपका, वही डिफरेंस हम डियरनेस अलाउंस का एक्सपेक्टेड इंक्रीज मान सकते हैं। और कैलकुलेशन सिमिलर लाइन पे होता है, कुछ थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की क्या अप्रूवल फाइनली होता है 3% या 2%, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे ही बनाया जाता है इसमें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक we can take a question if anyone want to ask any question. I think I tried my best to elaborate all the basics of the WPI, how data is constructed, how data is collected, and construction of WPI. I hope everybody understood properly. If you have any doubt, we can discuss further. Dr. Negi, can we have a question? Yes, thank you very much. I think you have justified the title which we have set up. The data collection, construction, and implication. Thank you very much for such an informative session. So let me check. You can check in the chat box if there is any question. Yes, some questions are here because we have the paucity of time. We have to bind up by 5 or 10 minutes, within the 5 or 10. Yeah, in the chat box we have one question is there. How WPI index is calculated? I think this has been given in the slide. Yeah, one person your question here we will try to ask in the data. Okay, one question is RP
direct My question was that why, yeah, see, yeah, why CPI, are we divergence of using, WPI and CPI. Yeah, regarding divergence of CPI and WPI, if you will see the composition and weight of WPI, like WPI accounts for large weight of those items which are affected by the international factor. Like अभी का जो आप देखेंगे कंपोजिशन देखेंगे कि जैसे क्रूड पेट्रोलियम WPI का एक इम्पोर्टेंट वेट है, फ्यूल एंड पावर के अलग वेट है, बेसिक मेटल केमिकल। तो आप जो WPI की इन्फ्लेशन 12.5 आप रेस किया है आपने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12.5 जो आप क्वेश्चन रेस 12.5% जो इन्फ्लेशन रेट आ रही है, उसमें आप सिर्फ इस फैक्टर को देखिए, सिर्फ केमिकल और फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बेसिक मेटल्स एंड फ्यूल एंड पावर, ये 4 आइटम, 4 ग्रुप ऐसे हैं, 4 ग्रुप जो कि जिनके वेट आई थिंक लगभग 30% के आसपास, 30% नहीं 20% के आसपास होने चाहिए। तो इन 4 ग्रुप ने मोर देन 20% कंट्रीब्यूट किया है, नहीं मोर देन 10% कंट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ 12.5%। इट मींस कि जो 2.5% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 2.5% एडिशनल है मोर देन 10 से, वो अदर WPI का इम्पैक्ट है। लेकिन बाकी जितने भी वो हैं सेक्टर हैं, जैसे उसमें टेक्सटाइल है, पेपर प्रोडक्ट्स हैं, और भी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे कंबाइन होके 2.5% के आसपास इनके कंट्रीब्यूशन बनेंगे। और आप बाकी 10% जो कंट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब है कि अराउंड 85 to 90% contribution in overall double-digit WPI inflation are contributed by four items. That is chemical, pharmaceuticals, and basic metal, and fuel and power. These are the group which are actually contributing the inflation. अब लेकिन अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये आइटम CPI में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द आइटम इसमें जितने भी हैं ये CPI में एग्जिस्ट नहीं करते, ये रॉ मटेरियल के आइटम है। रॉ मटेरियल के आइटम CPI में एग्जिस्ट नहीं करते। फाइनल वाले आइटम कुछ कॉमन प्रोडक्ट आपको WPI और CPI के मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि WPI का फूड प्रोडक्ट और CPI का फूड प्रोडक्ट ये को इंटीग्रेटेड होता है आपस में, लेकिन WPI और CPI ऑल कमोडिटीज के को इंटीग्रेटेड नहीं आ रहे हैं अभी के टाइम में। तो ये सिचुएशन है। और दूसरे उसमें आते हैं वेट्स आर कंट्रीब्यूट अक्रॉस द इंडस्ट्रियल गुड्स इन कंप्यूटिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ one or two question we can have, otherwise we are going out of time. Which weights are distributed across industrial goods computing the नहीं, वेट कंट्रीब्यूशन का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट पे हम लोग वेट कंट्रीब्यूशन करते हैं, वेट कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। नहीं, जैसे आप ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर यूजिंग 80-86 बेस ईयर जबकि दूसरे रिवीजन हो रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी इंडेक्स की भी रिवीजन चल रहा है, 80-86 भी रिवाइज होने वाला है, जो अभी प्रपोजल में है। लेटेस्ट रिवीजन जल्दी आ जाएगा होपफुली। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, तो इसमें बेस ईयर रिवीजन इसका भी हो रहा है। लेकिन किसी भी प्रॉक्सी बनाया जाता है हर चीज के लिए, तो इसलिए उस इंडेक्स का यूज किया जाता है। सभी इंडेक्स हर काम के लिए यूज नहीं होते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा माय क्वेश्चन कंट्री यूज ऑफ CPI फॉर CPI। अच्छा देखिए, CPI जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन का यही लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ डॉक्टर नेगी। तो लास्ट क्वेश्चन, CPI और WPI को मेजरमेंट का ये रहता है कि जो डिफरेंट कंट्री में जो एज ए हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी CPI हो गया है। सारी मोस्ट ऑफ द कंट्री वो लोग CPI को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि CPI में थोड़ा कवरेज और क्या बोलते हैं रिटेल लेवल ट्रांजैक्शन आता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट द कंज्यूमर्स, तो वो लॉजिक लिया जाता है। और दूसरा जो WPI का CPI पे शिफ्ट होने का इशू था, वो है कि जैसे सर्विस सेक्टर WPI में इंक्लूड नहीं है,
तो वो एक बड़ा कंपोनेंट छूट जाता है WPI में। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था जिसपे शिफ्ट किया गया। रंगराजन कमेटी 2005 में बनी, फिर उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी 2012 या 11 में आई, उसके रिकमेंडेशन के बाद फाइनली 2014 में अडॉप्ट किया गया इसको। तो ये बेसिक वो था कि WPI से CPI पे क्यों शिफ्ट कर लिया गया, ये बेसिक चीजें। बाकी वेरियस अदर रीजन यू कैन फाइंड इन द like newspaper also कि Most important reason was service, price of service. हाँ, Most important reason was price of service. yes, The yes. shifting. The most important reason was the inclusion of services component in CPI. तो क्योंकि सर्विस कंपोनेंट एज यू ऑल नो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 60% इन GDP, तो उस वजह से सर्विस कंपोनेंट को WPI में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था वो चीज, उस वजह से उसको शिफ्ट किया गया, बेसिक चीज थी। और इंटरनेशनली भी सारे लोग होलसेल से उस पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पे की गई। आई होप द लेक्चर दिस वर्कशॉप वाज Yes, interesting it was really fruitful, and I think everybody has come to learn about basics of WPI. Basically, the important information which is not always released by the ministry and all that. You have given that basic information. We used to go through theories and implications and all that. What is WPI, CPI? But basics that how that WPI has evolved over the time and how it is being used in different sectors and different departments, and then how it is being constructed. That was really informative. If anybody want to ask any question further, you can visit directly the ministry's website. You can have the link of the site, the email ID of Mr. Abu Huzaifa. You will ask directly him. Thank you very much for such an informative session. And let me take the opportunity to thank our beloved principal sir for his constant support, Vinita Tulli madam, convener webinar committee, and thanks to Ravinderji for your technical support. Thank you all my dear colleague for their constant supports, for organizing such webinars, and thank you very much the students who are behind the curtain for helping us for organizing this kind of webinars. And thank you all my dear participants. Without your encouragement, we would not be able to do, we will not be encouraged to do this kind of webinars and workshops. Thank you all my dear participants. And finally, thank you very much, Abu Huzaifa. I know that you are so busy with parliamentary session and you just took time to be here with us. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you, my dear colleague, for your constant support and encouragement. Thank you all. Thank you. Yeah, thank you very much, Dr. Negi and all the team members of the Atmaram College. And I hope you will be very soon. You will be Dr. Abu Huzaifa. I yes, wish. Yes. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much to all. Okay. Thanks to all.